Hello everyone, I'm Divakar Chaudhary. I'm working as an assistant professor in the Department of Management of GL Bajaj Institute of Technology, Greater Noida. Today, I'll be taking on the second lecture of the Unit 1 of the subject Export-Import Documentation. Now let's go on with it. When we go on to the first slide, let's go on to this. It will be the selection of export products. When we talk about the export products, the first part is export trends. What do we understand by export trends? An exporter should analyze trends in export of different items to the overseas markets for proper selection of the product. And what are the following resources which can be referred to the information of the export trends? We can think about monthly statistics of the foreign trade of India, Export Promotion Council, EPC bulletins, export import times. The final selection of the products depends upon one's own experience relating to the product. And when we simplify it more further, export trend, what do we understand by it? An exporter should analyze trends in export of different items to the overseas markets for proper selection of the product. They need to analyze first what is the trend going on in the export industry right now and how to reach out to them. For that, they need to understand and properly analyze the overseas markets first. Now let's go on to the second slide, supply base. What do we understand by the supply base? Along with the demand of the product in the international market, it is also necessary to analyze its supply base in the domestic market. When we talk about the international market, what is the demand which is there in the international market already? We first need to analyze what is the supply base, what we are having in the domestic market right now. So we need to analyze that at very first stage, and then when we talk about the agricultural product, most of the agricultural products defy this criterion as the supply demands upon a number of factors which are based on nature completely. So seasonal commodities like onions, fruits, or even sugar, wheat or rice have not proved to be good items for sustained export business. Why? Why they are not like proved to be a good item for the sustained export business? This is because the onion, where we were, yeah. This is because the onions, fruits, and even sugar, wheat or rice, these items, इनको रोका नहीं जा सकता ज़्यादा टाइम के लिए, बिकॉज अगर हम आइटम्स को ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व करेंगे या रोकेंगे तो बाहर के आउटर एनवायरनमेंट की वजह से क्लाइमेट चेंजेस, तो ये चीज़ें डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, तो दे कांट बी सस्टेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड इवन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स may not have a good supply base due to factors like strike, power shortage, lockouts, transport problems, etc. क्योंकि मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स आर डन बाय मोस्टली बाय लेबर्स, तो उनकी सप्लाई अच्छी क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि कई बार डिले हो जाता है इन चीज़ों में. क्योंकि डिले क्यों होता है? क्योंकि कई बार स्ट्राइक्स हो जाती हैं लेबर्स की, कई बार पावर शॉर्टेज होती है, लॉकआउट्स हो जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का बहुत प्रॉब्लम आता है कि कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, तो वो चीज़ें को ध्यान में रखते हुए सप्लाई बेस का बहुत इशू होता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी. स्काई इज द लिमिट फॉर सेलिंग अ प्रोडक्ट इन इंटरनेशनल मार्केट. इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है, आप कहीं तक भी कोई भी प्रोडक्ट सेल आउट कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में. Hence, a manufacturer exporter must consider his production capacity and a merchant exporter must consider the availability of the product selected for export before entering into an export contract. कोई भी मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर होगा, उसको हमेशा अपनी प्रोडक्ट का कितना वो प्रोडक्शन कर सकता है या फिर वो कितना प्रोड्यूस कर सकता है, उस चीज़ की प्रोडक्शन कैपेसिटी, और जो मर्चेंट एक्सपोर्टर होगा उसको हमेशा उसकी अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखना होता है. हर एक जो भी है वो प्रोडक्ट को आगे करेगा, मर्चेंट एक्सपोर्टर को देगा, उसको हमेशा प्रोडक्ट जो भी होगा उसको मार्केट में एंटर होने से पहले या फिर एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले उसको पूरी जानकारी उसके बारे में रखनी ज़रूरी है. इफ़ द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड अवेलेबिलिटी लिमिटेड, देन द एक्सपोर्टर शुड फोकस ऑन स्मॉलर मार्केट्स. अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और जो अवेलेबिलिटी है वो एक लिमिट तक है, दैट इज़ लिमिटेड, तो एक्सपोर्टर को पहले हमेशा छोटे मार्केट पे फोकस करना चाहिए. However, if the product can be made available easily, a sustained export drive is worthwhile.
Number 4 is product ability. When we talk about product adaptability, associated with the production capacity and availability is the possibility of adapting the product as per the requirement of the foreign markets. कभी भी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होती है और अवेलेबिलिटी होती है वो हमेशा उसकी एडेप्शन जो होती है प्रोबेबिलिटी वो हमेशा जो फॉरेन मार्केट की रिक्वायरमेंट है उस पर बेस्ड होती है. द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर्स डिफर फ्रॉम मार्केट टू मार्केट एंड कंट्री टू कंट्री. हमेशा जो भी नीड्स होंगी और जो रिक्वायरमेंट्स होंगी बायर्स की वो हमेशा चेंज होती हैं. मार्केट टू मार्केट चेंजेस आते हैं या फिर कंट्री टू कंट्री चेंजेस होते हैं. What sells well in one market may not sell at all in other markets. This calls for product adaptability. हमेशा कोई भी एक प्रोडक्ट है वो एक मार्केट में अच्छा बिक रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी मार्केट में भी अच्छा बिकेगा. तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी हमेशा चेक करते हैं वो. अब आ जाइए थर्ड पॉइंट. प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी इज नॉट एन ईजी टास्क एज इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ investment in adjusting production process as per the needs of the different markets. प्रोडक्ट एडेप्टेबिलिटी का कोई इजी काम नहीं होता है. इसके लिए हमेशा लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीडेड होती है क्योंकि आपको प्रोडक्शन का जो भी प्रोसेस है उसको एडजस्ट करना पड़ता है अलग अलग मार्केट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्विसिंग फैसिलिटीज. इफ द प्रोडक्ट selected for export is such that it requires servicing after sales. अगर कोई भी प्रोडक्ट है वो सेलेक्ट किया जा रहा है एक्सपोर्ट के लिए जिसकी आपको सर्विसिंग नीड होगी आफ्टर सेल्स सर्विसेज, तो फिर उसके लिए एक्सपोर्टर शुड सी टू दैट ही कैन अवेल सच फैसिलिटीज टू द ओवरसीज बायर्स. कोई भी प्रोडक्ट होता है अगर वो एक्सपोर्ट के बाद में आफ्टर सेल्स सर्विस रिक्वायर कर रहा है तो हमेशा जो एक्सपोर्टर है उसको ध्यान में ये चीज़ रखनी चाहिए कि ओवरसीज बायर की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड उसको वहाँ पे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी एंड विद वंस मीन्स टू ओपन सर्विसिंग सेंटर्स अब्रॉड. ये कभी भी एक ईजी नहीं होता है कि किसी को भी सर्विस सेंटर अब्रॉड में ओपन करना सो ईजीली नहीं माना जाता है. तो इसलिए सेम टाइम पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स अब्रॉड और एजेंट हैविंग सर्विसिंग फैसिलिटीज़. अब्रॉड के अंदर हमेशा सेम टाइम पर ही डिफ़िकल्ट होता है बहुत ज़्यादा एक डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट को सर्विसिंग फैसिलिटीज़ ढूंढना. इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एक्सपोर्टर्स टू प्रोवाइड सच सर्विसिंग फैसिलिटीज़ देन द एक्सपोर्टर शुड नॉट वेंचर टू एक्सपोर्ट सच प्रोडक्ट्स. अगर एक एक्सपोर्टर के लिए पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल फॉर द एक्सपोर्टर्स टू प्रोवाइड सच सर्विसिंग फैसिलिटीज़ then the exporter should not venture to export such products. Now let's talk about demand stability. Products selected for selling whether overseas or in the domestic market should not only have stable but a rising demand. Seasonal should be avoided unless the exporter has necessary infrastructure for selling them. प्रोडक्ट जो भी होगा सेलिंग के लिए ओवरसीज या फिर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कभी भी स्टेबल नहीं होता है क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आपको हाई राइजिंग डिमांड को मीट अप करना पड़ता है. जो भी सीजनल होता है उनको बेसिकली अवॉइड करना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्टर को हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी वो सेल करना चाहता है उसका हमेशा ध्यान रखना होता है. प्रोडक्ट्स डिपेंडिंग अपॉन फैशन ट्रेंड्स थ्रू कंपैरेटिवली मोर प्रॉफिटेबल may not always prove to be good for those exporters who cannot cope with such trends. जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो फैशन ट्रेंड्स और जो प्रॉफिटेबल मार्जिन को लेकर हैं हमेशा अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि एक्सपोर्टर्स को हमेशा इन ट्रेंड्स के साथ में कोप अप करना पड़ता है. अगर वो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल बी गोइंग टू अ ह्यूज लॉस. देयरफॉर द एक्सपोर्टर शुड सेलेक्ट सच प्रोडक्ट्स विच प्रोवाइड अ लार्ज एंड स्टेबल मार्केट. इसलिए हमेशा एक एक्सपोर्टर को एक ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जो कि एक लार्ज और स्टेबल मार्केट को आगे बढ़ा सके. ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस. व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस while selecting a product for exports, it must be ensured that such product should not be subject to the country's export control regulation or import control regulation of the concerned target market. कभी भी when we talk about trade restrictions, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक्सपोर्ट के लिए जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है वो प्रोडक्ट किसी भी कंट्री के एक्सपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशन या इंपोर्ट कंट्रोल रेगुलेशंस के अंदर फॉलो अप नहीं होना चाहिए टारगेट मार्केट्स को लेकर के.
Although export restrictions in all the countries are minimum, as there is a tendency to promote exports of all products, still there are a number of items where control do exist. हालांकि एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादातर कंट्रियों में बहुत कम से कम मात्रा में होती हैं, क्योंकि उन ज़्यादातर टेंडेंसी होती है प्रमोशन को लेकर के प्रोडक्ट्स की, लेकिन फिर भी कुछ आइटम्स होते हैं जहाँ पर ये कंट्रोल रखना पड़ता है. देयरफॉर द एक्सपोर्टर शुड ट्राई टू अवॉइड एक्सपोर्ट ऑफ सच प्रोडक्ट. इसलिए एक्सपोर्टर को ये सब प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. नाउ लेट्स गो टू प्रॉफिटेबिलिटी. Profitability is the prime objective of all marketing activities. The product selected for exports must fetch a fair profit to the exporter. Profitability हमेशा एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है हर एक मार्केटिंग एक्टिविटी का, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं या कुछ भी आप बना रहे हैं उसको सेल आउट करने के लिए वो हमेशा प्रॉफिट से जुड़ा हुआ होता है. एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट ही चाहिए. The product selected for exports must fetch a fair profit to the exporter. हमेशा एक प्रोडक्ट जो भी सेलेक्टेड हो रहा है एक्सपोर्ट के लिए उसको हमेशा एक फेयर प्रॉफिट एक्सपोर्टर को आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाएगा. मोर ओवर प्रॉफिटेबिलिटी शुड एज फार एज पॉसिबल बी डायरेक्टली अराइजिंग फ्रॉम द सेल्स प्राइस इटसेल्फ. ज़्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा जितना भी पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादातर हमेशा सेल्स प्राइस के अंदर ही आ जाता है, क्योंकि जो भी सेलिंग प्राइस होता है उसको प्राइस दिया ही उस पर्पज से जाता है कि प्रॉफिट भी अपना बचा सके सारी कॉस्ट को निकालने के बाद. दो एक्सपोर्ट बेनिफिट्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक, एक्साइज रिफंड एक्सेट्रा आर नेसेसरी टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग द एक्सपोर्ट प्राइस. इट इज़ ऑलवेज बेटर इफ द प्रोडक्ट सेल्स इन द ओवरसीज मार्केट्स इवन इफ सच असिस्टेंस इज नॉट अवेलेबल. जैसे कि एक्सपोर्ट बेनिफिट्स होते हैं, जैसे ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, एक्साइज रिफंड होता है, और भी इस तरह के कई होते हैं. इनको हमेशा ही कंसिडरेशन में लेना चाहिए क्योंकि कैलकुलेट करने के लिए एक्सपोर्ट प्राइस को. वैसे तो अच्छा होगा कि अगर प्रोडक्ट ओवरसीज मार्केट में अच्छे से सेल आउट हो रहा है बिना असिस्टेंस के रिक्वायरमेंट के, लेकिन फिर भी इनका ध्यान हमेशा रखना चाहिए. नाउ कैश इन एडवांस. व्हेन वी टॉक अबाउट कैश इन एडवांस, विथ जो इसकी पेमेंट टर्म्स होती हैं, विथ कैश इन एडवांस पेमेंट टर्म्स an exporter can avoid credit risk because payment is received before the ownership of the goods is transferred. कैश इन एडवांस पेमेंट टर्म्स के अंदर हमेशा एक एक्सपोर्टर को हमेशा क्रेडिट को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिस्क पेमेंट पहले होता है ओनरशिप ऑफ गुड्स के आने के पहले. फॉर इंटरनेशनल सेल्स, वायर ट्रांसफर्स एंड क्रेडिट कार्ड्स आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैश इन एडवांस ऑप्शन अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर्स. हमेशा इंटरनेशनल सेल्स के लिए ज़्यादातर वायर ट्रांसफर्स और क्रेडिट कार्ड्स का यूज़ किया जाता है हमें एक्सपोर्ट करने के लिए. विद द एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेट, एस्क्रो सर्विसेज आर बिकमिंग अनदर कैश इन एडवांस ऑप्शन फॉर स्मॉल एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन. अभी जैसे कि इंटरनेट आज के टाइम में बहुत प्रोडक्टिव साबित हो रहा है, तो उसके लिए इंटरनेट के एडवांसमेंट के बाद में एस्क्रो सर्विसेज ज़्यादातर कैश इन एडवांस ऑप्शन बनते जा रहे हैं स्मॉल एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स के लिए. However, requiring payment in advance is the least attractive option for the buyer because it creates unfavorable cash flow. ज़्यादातर जो पेमेंट इन एडवांस होती है वो ज़्यादातर हमेशा लीस्ट अट्रैक्टिव होती है. क्यों? क्योंकि आपको अनफेवरेबल कैश फ्लो है उसके अंदर. फॉरेन बायर्स आर ऑल्सो कंसर्न दैट द गुड्स मे नॉट बी सेंट इफ द पेमेंट इज मेड इन एडवांस. फॉरेन बायर्स को ज़्यादातर कंसर्न इस चीज़ का होता है कि हो सकता है कि हम पेमेंट कर दें और हमारा गुड्स या जो भी हमने प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वो हम तक ना पहुंच पाए, इसीलिए उसमें थोड़ा सा डर बना रहता है. दस एक्सपोर्टर्स हु इंसिस्ट ऑन दिस पेमेंट मेथड एज देयर सोल मैनर ऑफ डूइंग बिजनेस में लूज टू कम्पिटिटर्स हु ऑफर मोर अट्रैक्टिव पेमेंट टर्म्स. इसलिए एक्सपोर्टर्स जो भी इन पेमेंट टर्म्स को यूज़ करते हैं मेथड को, ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स के साथ में कई बार लॉसेज में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि वो लोग और भी अट्रैक्टिव पेमेंट टर्म्स के साथ आगे बढ़ते हैं. तो चेंजेस अपडेट होने चाहिए ऑलवेज. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट. व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट, दे आर ऑल्सो नोन एज LCs. व्हेन वी टॉक अबाउट लेटर ऑफ क्रेडिट, LCs आर वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल ऑन टू इंटरनेशनल ट्रेडर्स. ये सबसे ज़्यादा सिक्योर इंस्ट्रूमेंट होता है इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए. लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ कमिटमेंट बाय अ बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द बायर
That payment will be made to the exporter providing that the terms and conditions stated in the LC have been met as verified through the presentation of all required documents. लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट होता है एक बैंक का कमिटमेंट बायर के बिहाफ पर कि जो भी हमारा एक्सपोर्टर है उसको पेमेंट रिलीज हो जाएगी, क्योंकि जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि एलसी में ऑलरेडी मेंशन्ड है वो सारी की सारी मीट हो रही हैं और वेरीफाई हो चुकी हैं सारे डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से बारीकी से जांचने के बाद. The buyer establishes credit and pays his or her bank to render the service. Letter of credit is useful when reliable credit information about a foreign buyer is difficult to obtain, but the exporter is satisfied with the creditworthiness of the buyer foreign bank. Letter of credit also protects the buyer since no payment obligation arises until the goods have been shipped as promised. Documentary collections. Documentary collection is a transaction whereby the exporter entrusts the collection of the payment for a sale to its bank, which sends the documents that its buyers needs to the importer's bank with instructions to release the documents to the buyer for payment. A documentary collection is a transaction whereby the exporter entrusts the collection of the payment for a sale to its bank, which sends the documents that its buyers needs to the importer's bank with its instructions to release the documents to the buyer for payment. Funds are received from the importer and remitted to the exporters through the bank involved in the collection in exchange for those documents. जो भी funds receive होते हैं एक importer से वो remit किए जाते हैं exporter through the banks involved in the collection in the exchange for those documents, उन documents के exchange पर. It involves using a draft that requires the importer to pay the face amount either at site, document against acceptance, or on a specific date, documents against acceptance. इनको ये बोला जाता है एक तरीके से. It involves using a draft that requires the importer to pay the face amount either at site or on a specific date. The document collection letter gives instruction that specify the documents required for the transfer of the title of the goods. ये जो कलेक्शन लेटर होता है ये इंस्ट्रक्शन देता है स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे फॉर द ट्रांसफर ऑफ द टाइटल टू द गुड्स, गुड्स को टाइटल ट्रांसफर के लिए. Although banks do act as facilitators for the clients, documentary collections offer no verification process and limited recourse in the event of non-payment. ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं वो फैसिलिटेटर का काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए. डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस है ना कभी भी वेरिफिकेशन प्रोसेस और लिमिटेड रिसोर्सेज को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देता है इन द इवेंट ऑफ नॉन पेमेंट. ओपन अकाउंट. What do we understand by the open account? An open account transaction is a sale where the goods are shipped and delivered before payment is due, which in international sales is typically 30, 60 or 90 days. एक ओपन अकाउंट ट्रांजेक्शन एक सेल होती है जहाँ पे गुड्स जो भी प्रोडक्ट्स हैं या गुड्स हैं वो शिप किए जाते हैं और डिलीवर्ड होते हैं पेमेंट ड्यू पेमेंट डेट के पहले. विच इन इंटरनेशनल सेल्स, जो इंटरनेशनल सेल्स होती है उसमें ज़्यादातर 30, 60 और 90 डेज़ का ड्यू मार्जिन होता है. द एक्सपोर्टर्स हु आर रिलक्टेंट टू एक्सटेंड द क्रेडिट में लूज अ सेल टू देयर कॉम्पिटिटर्स. जो भी एक्सपोर्टर्स होते हैं जो क्रेडिट को एक्सटेंड करने का ज़्यादा ट्राई करते हैं में लूज अ सेल, वो सेल को गवा देते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजियस ऑप्शंस टू द इम्पोर्टर इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो एंड कॉस्ट, बट इट इज़ कॉन्सिक्वेंटली वन ऑफ द हाइएस्ट रिस्क ऑप्शन फॉर एन एक्सपोर्टर. ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस ऑप्शन होता है इम्पोर्टर के लिए कैश फ्लो और कॉस्ट के रिगार्डिंग, बट ये सबसे ज़्यादा रिस्की ऑप्शन होता है एक एक्सपोर्टर के लिए. इसको हमेशा ध्यान में रखा जाए. और कंसाइनमेंट, अब हम बात करेंगे कंसाइनमेंट के बारे में. एक कंसाइनमेंट से आप क्या समझेंगे? कंसाइनमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड is a variation of open account in which payment is sent to the exporter only after the goods have been sold by the
फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर टू द एंड कस्टमर। कंसाइनमेंट को इंटरनेशनल ट्रेड में एक वेरिएशन कहा जाता है ऑफ ओपन अकाउंट इन विच पेमेंट इज सेंट टू द एक्सपोर्टर ओनली आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड, गुड्स के बिकने के बाद ही बाय द फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर टू द एंड कस्टमर, एक फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हमेशा कस्टमर को। एन इंटरनेशनल कंसाइनमेंट ट्रांजेक्शन is based on a contractual arrangement in which the foreign distributor receives, manages and sells the goods until they are sold. हमेशा एक इंटरनेशनल कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन किस पे बेस्ड होती है? एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर एक फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर को रिसीव होती हैं चीज़ें, मैनेज करता है, वो सेल्स करता है गुड्स को जब तक वो बिक नहीं जाते। कंसाइनमेंट हेल्प द एक्सपोर्टर्स become more competitive on the basis of better availability and faster delivery of the goods. Consignment हमेशा जो एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है, क्योंकि किस बेसिस पे? उनकी अवेलेबिलिटी और फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेकर के। Selling on consignment can also help exporters reduce the direct costs of storing and managing inventory. The key to success in exporting on consignment is to partner with a reputable and trustworthy foreign distributor or a third party logistics provider. कंसाइनमेंट पे सेल करने के लिए एक्सपोर्टर्स हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि जो कि स्टोरिंग एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री के अंदर फ़ायदा करता है। इसका सक्सेस क्या होता है एक्सपोर्टिंग का? कि किसी के साथ पार्टनरशिप कर लेना जो कि एक रेप्यूटेबल और ट्रस्टवर्दी फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर है या फिर एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर है, तो उसके थ्रू उनकी कॉस्ट कटिंग में फ़ायदा होता है। Appropriate insurance should be in place to cover consigned goods in transit to or in possession of a foreign distributor, as well as to mitigate the risk of non-payment. एक appropriate insurance हमेशा होना चाहिए ताकि consigned goods जो हो रहे हैं in transit या possession of foreign distributor हमेशा उसको बचा सके risk of payment को। Now, when we talk about the references, you can refer few books like Export Import Documentation by Rama Gopal, Export Import Documentation by Professor Ravi Phadke, Professor Pooja Aprajita, Export Import Documentation by Jain Book Depot. And what do we have covered? Let's go through the overall PPT margin. We have covered few topics like selection of export products, where we learnt about export trends, जिसके अंदर हम लोग क्या क्या रिसोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं। हम लोग जिन सोर्सेज को रेफ़र कर सकते हैं वो है मंथली स्टैटिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, एक तो ये होता है, एक होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल EPC बुलेटिन्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाइम्स। ये हमेशा जो प्रोडक्ट का फाइनल सिलेक्शन होता है उसके अपने एक ओन एबिलिटी जो होती है और एक्सपीरियंस उसका रिलेटेड प्रोडक्ट को लेके उसके ऊपर डिपेंड करता है। सप्लाई बेस, इसमें हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा था कि जो भी सप्लाई बेस है, ये कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे अनियन, फ्रूट, शुगर, वीट, राइस, इन लोगों को, इन प्रोडक्ट को ज़्यादा टाइम तक हम सस्टेन नहीं कर सकते, इसलिए इनको ज़्यादातर स्टोर नहीं करा जाता है उतने टाइम के लिए और जल्दी से जल्दी सेल आउट किया जाता है। और इन स्ट्राइक, पावर शॉर्टेज, लॉकआउट, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स, इनकी वजह से अच्छी सप्लाई नहीं हो पाती है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स की, क्योंकि ये सब इश्यूज़ आ जाते हैं, तो इसीलिए ज़्यादातर इनको अवॉइड करा जाता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी क्या होती है? हमेशा कभी भी सेल करते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में, उससे पहले डोमेस्टिकली जानना होता है कि प्रोडक्ट की कैपेसिटी, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी कितनी है। इसके बाद प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी, कैसे अडेप्ट करता है प्रोडक्ट, कितना अवॉइड कर सकता है। सर्विसिंग फैसिलिटीज़, क्या क्या वो सर्विसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है अपने ओवरसीज़ बायर्स को। डिमांड स्टेबिलिटी, क्या डिमांड है मार्केट में, कितना अप एंड डाउन हो रहा है। ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना, प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके मार्जिन को हमेशा ध्यान में रखना। कैश एंड एडवांस पेमेंट्स, जो भी कैश आ रहा है उसके बारे में। LCs, लेटर ऑफ क्रेडिट, जो कि एक सिक्योर इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रेडर्स के लिए। डॉक्यूमेंट्री कलेक्शंस, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं पेमेंट्स के लिए। ओपन अकाउंट, जिसके अंदर जो ड्यू पेमेंट के अंदर डिलीवरी का। कंसाइनमेंट जो भी अब फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह सेल करते हैं उनके लिए, कस्टमर्स के लिए। रेफरेंसेस यू हैव गॉन थ्रू, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लेक्चर टुडे।